Recording is available. Okay, so this is my model assumption. Sorry. So I would like to move. Yeah. So we are moving from this linear discriminant analysis, and हमने अर्लियर क्लासेस में लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यूज करा था एज एन क्लासीफायर. नाउ वी लाइक टू यूज लाइक dimension reduction method. Fine. So I'm starting again with my my linear discriminant function. My linear discriminant function we had used like this is an used as an uh, linear regression. So my equation of line is like y equals to w transpose x into w naught. So this my y naught or this w zero is my intercept on the y-axis, and this is my unaugmented matrix. This is x, and we had not augmented over here. So this is my y naught or beta naught, and this is my the remaining like beta 1 to beta naught, beta n. So this is how we can say that. So for this linear discriminant function based on our classifier, so our classifier based on if classifier is based on the linear discriminant function. So we have to decide whether your particular data point belongs to class 1. So we had started, we will like to start like we have binary classification, either that data belongs to the class 0 or data belongs to class 1. So my y is like y is 0 or y is 1. So I'm deciding whether if x belongs to class 1, if and only if whether this w transpose x plus w naught is greater than 0. मतलब उस लाइन से ऊपर जा रहे हैं. फाइन. सो उस लाइन से हम ऊपर जा रहे हैं. सो वी आर सेइंग दैट एक जैसे ये एक लाइन है, दिस इज अ रेड लाइन. सो दिस इज रेड लाइन इज लाइक w transpose x plus w naught. So we are saying that if this w transpose x plus w naught is greater than 0, हम इस x को अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं तो वो क्लास 1 में आ रहा है, मतलब इस एरिया में आ रहा है. और अगर वो क्लास 0 में आ रहा है तो वो इस नीचे वाले एरिया में आएगा. सो दिस इज माय जस्ट एन डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन. सो हियर वी आर सेइंग दैट अब हम जब स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन फॉर द डायमेंशन रिडक्शन, सो वी आर कंसर्निंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ w. Why? Because this direction of w is concerned here. So जैसे ही आपकी w की डायरेक्शन आएगी हम उसी पर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा डेटा कैसा होता है. काइंडली म्यूट योर माइक दोज हु आर स्टडीिंग. तो कोई मतलब ही नहीं. अभी तो एकदम से पता नहीं मेरे डाउनलोड में पड़ी हुई थी तो मैं देखने लग गई, बोर हो रही थी. तो बिल्कुल आप माइक म्यूट कर लें. कौन था? नंदिनी माइक म्यूट कर लें. सॉरी नीलम मीणा माइक म्यूट करें. फाइन. सो आई एम नॉट हियर. या so we are consenting whether if data belongs to class 1, then this equation is satisfied. Otherwise we'll say that data belongs to our class 0. So here we are saying that w is an vector in r dimensional space. Again consider करें कि w is an vector in r dimensional space and can be taken as an direction. So we are considering this as an direction. Then this w transpose x is the projected value of x in direction of w. ये क्या होता है मैं आपको next पेज पे बताता हूँ. So again we are concerned about that this w is an vector in d dimensional space. इसका dimension क्या है? This is d cross 1. इसमें d number के items हैं and this is d cross 1 and this can be taken as a direction. So we are concerning about direction because this is a vector. So vector is again we are having a direction. So we are concerning that this w is in direction and this w transpose x. So this is w transpose. So this w transpose is your again vector, and this vector is multiplied by your another vector. So when we are multiplying two vectors, so again it means that we are projecting something uh, on our hyperplane. So this is how we can say that. Fine. So again, if I take any x, so let's say I am putting any x. So if I take any x that belongs to class 1, so हमने एक क्लास 1 से ऊपर बिलोंग कर दिया तो एक लाइन के ऊपर का बिलोंग कर रहा है. देन द प्रोजेक्टेड वैल्यू सेटिस्फाइड लाइक w ट्रांसपोज x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ w नॉट. हमने इसको यहाँ पर सीधे w0 को इस तरफ ले आया तो दिस इज w ट्रांसपोज x इज ग्रेटर देन माई minus of w naught. Otherwise
I will take x that belongs to class 0, then the equation is satisfied like w transpose x is less than minus w naught. तो ये तो simple सी inequality, so you can check. Then again we are saying that uh, we can think of the best w. So सारी चीजें कहाँ डिपेंड कर रही है इस w की डायरेक्शन पे. तो वी कैन थिंक दैट दिस बेस्ट w इज लाइक इन डायरेक्शन अलोंग योर टू क्लासेस. सो हमारे पास अगर ये पर्टिकुलर डेटा है, लेट्स से मेरे पास ये पर्टिकुलर डेटा है, तो इस पर्टिकुलर डेटा में मेरा हाइपर प्लेन तो हमने यहाँ पर अगर लीनियरली क्लासिफाइड है तो हम यहाँ पर हाइपर प्लेन इस डायरेक्शन में बना सकते हैं. पर हमको क्या करना है, हमको डायमेंशन रिडक्शन करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग दैट दिस base w as the direction along which your two classes will be separated linearly. So अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जिसमें इन दोनों का क्लासिफिकेशन लीनियर क्लासिफिकेशन हो, एक तरफ हो और दूसरा दूसरी तरफ हो, so this is supposed to be the best direction on which your two classes can be separated betterly, or this is best separation or based classification. So what we are trying to do is that we like to project our data. So this is my data, fine. So this is my data, so I like to project data in the direction of w, fine. So we have to find the direction of w. हमने जब लीनियर क्लासिफायर एलडीए यूज करा तो हमने ये सेपरेटिंग लाइन हम लोगों ने ये यूज करी थी, है ना. पर हम उसको क्लासिफाई कर रहे थे. मेरे को W की डायरेक्शन चाहिए थी जो हमको क्लासिफाई कर सके. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी लाइक टू प्रोजेक्ट आवर डेटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ W, like your separation between your points in your different classes in your project data, so that we can rate how good your W is. Like we had started, like if I like to project our particular data in x-axis, तो मैंने यहाँ पर मेरा डेटा को x-axis में प्रोजेक्ट करा. हम सिर्फ किसी भी एक एक्सिस में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एक्सिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने इस पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा. मैंने ये पूरा डेटा था उसको इस x एक्सिस पर प्रोजेक्ट करा. तो मैंने इसको x एक्सिस पर प्रोजेक्ट करा, तो मेरे पास ये वाले सारे पॉइंट्स यहाँ है, मेरे पास रेड पॉइंट्स भी यहाँ है. तो अब हमको क्या दिख रहा है, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो इंटरमिंगल हो रहे हैं. इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास लीनियर सेपरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास रेड पॉइंट्स यहाँ पर भी आ रहे हैं और मेरे पास ब्लू पॉइंट्स यहाँ पर भी आ रहे हैं. फाइन. तो दिस इज नॉट गुड वे ऑफ क्लासिफिकेशन और डायमेंशन रिडक्शन. चलो मैं इसको y एक्सिस पर ले लेता हूँ. तो y एक्सिस पर फिर मैंने इनको इस तरह से प्रोजेक्ट करा. अब जब मैंने y एक्सिस पर इनको प्रोजेक्ट करा तो देखो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स फिर रेड वाली लाइन में आ रहे हैं. तो हम इस चीज पे तो हम काम कर नहीं सकते. इज इट फाइन? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? एनी रिस्पॉन्सेस? नो रिस्पॉन्स. ओके फाइन. सो नाउ अब मेरा जो क्लासिफिकेशन था, मैं कुछ एक ऐसी लाइन प्रोजेक्ट करूं, ये मैं एक ऐसी लाइन प्रोजेक्ट करूं जिसमें देखो, अब मैं एक ऐसी एक्सिस मैंने प्रोजेक्ट कर दी है. वो मेरी एक्सिस कैसी होगी, वो एक्सिस ऐसी प्रोजेक्ट होगी कि मेरे ब्लू पॉइंट्स और रेड पॉइंट्स उसको यहाँ प्रोजेक्ट करा, तो मेरे ब्लू पॉइंट्स रेड पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे रेड पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं. और मेरे जो सेपरेटिंग हाइपर प्लेन था जो हमने एज एन क्लासीफायर यूज करा था मैक्सिमम अप्रायोरी से, तो उस मैक्सिमम अप्रायोरी से हमने जब वो सेपरेटिंग हाइपर प्लेन आइडेंटिफाई करा था, तो वो हाइपर प्लेन इन दोनों को लीनियरली सेपरेबल कर पा रहा है. Is this fine? So what we are trying to do is that हमारे पास ये एक एक्सिस थी, हमारे यहाँ पास ये एक्सिस थी, हमने ये दोनों एक्सिस हटा दी, हमने इस डेटा को सिर्फ इस एक्सिस पर प्लॉट कर दिया, तो मैं 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन पे आ गया. अब मेरे को जरूरत नहीं है मेरे डेटा को 2 डायमेंशन पे लाने की. 2 डायमेंशन में लीनियरली सेपरेबल में दिक्कत आ रही थी, मैंने एक एक्सिस पे ले आया. सो वी कैन से दैट वी आर गोइंग फॉर लीनियर सेपरेशन. तो इसका लीनियर सेपरेशन और वो सारा जब है उसका एप्लीकेशन है. हम अभी क्या कर रहे हैं, डायमेंशन रिडक्शन कर रहे हैं कि 2 क्लासेस बेटरली सेपरेट हो जाए, या उस पर हमको जो भी कंप्यूटेशन करना हो हमको साफ साफ चीजें अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें. इज इट फाइन? सो आई एम गोइंग फ्रॉम दिस 2 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन, और वी कैन से दैट वी आर मूविंग फ्रॉम दिस n डायमेंशन टू m डायमेंशन वेयर m इज लेस देन n. फाइन? इज इट फाइन?
हमने इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करा। आप प्रोजेक्शन देखो तो प्रोजेक्शन पर हमने ये काम कर चुके थे और हमने ये वाली लाइन की इक्वेशंस दे रखी थी। अगर हमको उस चीज पर हम सफिशिएंट थे, हमको वो चीज आ रही है, हम क्लासीफायर से यूज करना चाहते थे, तो हमको सिर्फ ये करना है कि हमको डब्ल्यू की लाइन लानी है, डब्ल्यू की डायरेक्शन लानी है, और डब्ल्यू इज अगेन परपेंडिकुलर टू योर पर्टिकुलर हाइपर प्लेन। हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कि W इज परपेंडिकुलर टू यू। हमने हमेशा स्टार्ट करा था कि हमारे कॉलम्स जो थे इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थे, हम लोगों ने उनका कॉस थीटा जो था वो 90 डिग्री लिया था, तभी तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। वी हैड स्टार्टेड लाइक आर बीटा नॉट एंड x1 आर नॉट इंडिपेंडेंट और यूजली इंडिपेंडेंट और रैंडम वैल्यूज। हमारे x कांस्टेंट था, हमारा w जो था वो या बीटा जो था हमारा वो रैंडम था, हमारे अननोन पैरामीटर्स रैंडम थे, तो उन दोनों का एंगल हमेशा हम मान के चलते थे कि वो 90 डिग्री है। दिस इज बेटर सेपरेशन। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी w की लाइन जो w की डायरेक्शन आ रही है वो w की डायरेक्शन 90 डिग्री है। अगर हम एज एन क्लासीफायर डिफाइन करके फिर उसके लाइन आइडेंटिफाई टाइम लगता है, हम सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं, दिस W इज राइट, यू आर परपेंडिकुलर टू हाइपर प्लेन। सो हम सीधे W की डायरेक्शन ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम सिर्फ डायमेंशन रिडक्शन पर बात कर रहे हैं, हम क्लासीफायर पर नहीं जा रहे हैं। सो द आइडिया इज टू फाइंड द डायरेक्शन W सच दैट your training data of two classes are well separated if projected on this particular W direction. So this is my idea. My idea is to find a direction W. This is my direction W such that your training data, this is my training data, this my training data of two different classes, or we can say we have n number of classes, are well separated, so this is my separating hyperplane, so are well separated if projected on or projected on this particular direction. So this is my key idea for going LDA as an dimension reduction method. Is it fine? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay, fine. So we are starting with the two class classification or two class case. So let's say my training data is xi yi. So these xi's are supposed to be the features and these yi's are my labeled are the my classes. So I am having n number of instances available. So I moves from 1 to n. So मेरे पास n number की rows available हैं and yi belongs to either 0 or 1. So मेरे पास class में क्या होगा, ये इसके ऊपर होगा तो ये 1 है, इसके नीचे होगा तो 0 है। मेरी कोई भी क्लासेस हो सकती है, या तो ये 0 होगा या और ये 1 होगा, या ये 0 होगा और ये 1 होगा। सो माय आउटपुट बिलोंग्स टू और माय टू डिफरेंट क्लासेस बिलोंग्स टू 0 और 1। या मेरे पास मेरी क्लासेस हैं, दिस इज माय रेड क्लास एंड दिस इज ब्लू क्लास। सो this is just an binary classification, and let we denote these classes like C0. If yi belongs to 0, then we said that this is C0, and if yi belongs to 1, it means that we are saying that this is class 1. So we are in two different classes associated with this training data. This is C0 and C1. So if yi is equals to 0, then we are saying that this is x belongs to your C0, and if yi is equals to 1, then we are saying that this xi belongs to your C1. Fine. Now we are computing. So let's say number of items or number of xi's that belongs to C0 is, let's say, n0, and number of items or number of instances that belongs to class C1 are n1. So we are having two different number of instances like n0 and n1, and when we combine this n0 and n1, so we'll get n. So n is, we had started with like we are having n number of instances, so I can break up this n into two different parts, number of items that belongs to uh, C0 class and number of instances that belongs to C1 class. Fine. Now we are interested in projecting our data in W direction. So let's say for any W, we are projecting our data. So this is my projection. So this is W transpose Xi is my projection. So I am just projecting my data in particular any direction. So for any W, let's say Zi is W transpose Xi. So this is my unknown projection. So we like to find any sufficient W that classifies your all data very well. So we'll start by like, let's say we are having two classes C0 and C1, and the number of items in C0s are N0, and number of items in my class C1 is N1. So let's take the mean of all those classes. So mean of my class 1 is like, mean is just number of items upon the sum of all items. So this is xi upon n0. तो वो सारे xi जो C0 को डिपेंड
बिलोंग करते हैं तो उन सभी का सम अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स, तो दिस इज एन नॉट. एंड अगेन sum of all xi that belongs to class C1 upon the number of items. So this is my m naught and m1. Is it fine? So this we are calculating only the mean of each class C naught and C1. Is it fine? Now the corresponding means. अब मैं प्रोजेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सआई से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, मैं मीन से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं मीन से क्यों प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो ये डेटा है और ये डेटा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे मीन से, तो मेरा मीन इन सारे डेटा का मीन यहाँ आ जाता है, इन सारे डेटा का मीन यहाँ आ जाता है. तो इतने सारे प्रोजेक्शन करने की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे मीन को ही प्रोजेक्ट कर लेता हूँ. तो मीन का प्रोजेक्शन एक यहाँ पर आएगा, मीन का प्रोजेक्शन एक यहाँ पर आएगा. सो दिस इज माई एम नॉट एंड दिस इज माई m1. सो this m naught and m1, so we are projecting. So जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो this is w ट्रांसपोज m naught यहाँ आएगा और w ट्रांसपोज m1 यहाँ आएगा. Fine, is it fine? So we are calculating like this is m naught, so this is my projection, so this is my small project, this is my projection with respect to m naught. So this is small m naught is equals to w transpose m naught, and m1 is equals to small m1 is equals to w transpose m1. Is it fine? And what we are trying to do is that, so this is so you are getting some projection over this point and you are getting some projection and this point, and what we are trying to do is that we like to get good separation. So we like to good separation. It means that this m naught and this m1, this small m naught and small m1 are sufficiently distant from each other. So what we like to do is that we like to maximize the difference between m naught and m1, or m1 minus m naught, or m naught minus m1. So it doesn't depends on your sign. So we like to maximize the difference. So this is how we can calculate the difference between. So the difference between m naught and m1 gives an idea the separation between your two samples, whether the two classes, after you are projecting your two classes on direction w. So what we are trying to do is that, because we like to omit the difference in between, sign in between these two classes, so we like to maximize like m naught minus m1 to the power 2, or minus m1 whole square. So we like to maximize this because we like to remove this signature over here. So we like to maximize this difference. But again the problem is that this m naught and m1 is not scale dependent. Like again, when we are going from this particular point, so this let's say मेरा m naught, ये जो मेरा जीरो क्लास थी, ये क्लास जीरो का डेटा यहाँ से यहाँ तक हो सकता था और मेरी क्लास वन का डेटा यहाँ से यहाँ तक हो सकता था. तो इसकी स्केल क्या होती, इसकी स्केल क्या होती, इसका पॉइंट यहाँ आता, इसका पॉइंट यहाँ आता, या सिंपली हम बोलें कि या तो स्केल पे डिपेंड कर रहा है या उसके वेरिएंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक क्लास का वेरिएंस ज़्यादा हो सकता था, दूसरी क्लास का वेरिएंस कम हो सकता था. सो वी आर हैविंग सम serious problem when we like to maximize this particular problem. Fine. So what we are trying to do is that we like to make it scale independent, and we will like to cover the variance in this particular difference. So we are calculating again the variance between these classes. So variance between this class and the variance between in this class. So what is the formula of your variance? Let's say this is my sample variance. So this is my sample variance. So हमने sample variance हमेशा ऐसे डिनोट करते थे, और हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस था हम सिग्मा से डिफाइन करते थे. आपने शायद हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ भी चुके थे. So like your s is equals to your sigma square upon under root of something हमने कैलकुलेट करा था फर्स्ट यूनिट में. So this is s naught square equals to like is equals to your variance. So this is your each data point minus mean का whole square. So summation of all those points, again s1 is equals to this is your projected point on that particular line minus your mean of that particular projection. So this is m1 is again your mean of your projection. So your each projected point minus the mean of projected points का summation का whole square. So this is again this is s naught का variance and this is s1 का variance. मैं mean काय का निकाल रहा हूँ, मैं projected points का निकाल रहा हूँ, मैं xi minus
M0 नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल M0, xi मेरा डेटा था और कैपिटल M0 मेरा उस xi का मीन था, पर मैं वहां उनका मीन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्टेड पॉइंट का मीन कर रहा हूँ. तो दिस इज माय प्रोजेक्टेड पॉइंट एंड दिस इज द मीन ऑफ प्रोजेक्टेड पॉइंट. अगेन दिस इज for class 0 and this is projected points for class 1 and this is the mean of projected points on class 1, this is class 0. Is it fine? Yes, sir. So we are getting some variance up to some factors. So we are getting some variance. So what we are trying to do is that we like to scale up, or we like to make this scale independent. So what we are trying to do is that we like to maximize this with respect to your variances. So we like to make, or we like to maximize this. So we like to maximize this difference like m1 minus m0 upon with respect to your variances though. So we are dividing this by s0 square plus s1 square. So this is my cost function. So what we are trying to do is we want some large separation between m0 and m1 relative to your variance. So this is my objective function, or this is my cost function. So the cost function हमने लीनियर रिग्रेशन में निकाला था. दिस इज j of w is equals to least mean square, like summation from right from 1 to n minus minus original y minus estimated y. So हमारा नया कॉस्ट फंक्शन क्या बन रहा है, ये हमको बताएगा कॉस्ट की हम कितना सही जा रहे हैं, हम कितना गलत जा रहे हैं. तो वी हैव टू क्रिएट सम कॉस्ट फंक्शन. सो दिस इज माय कॉस्ट फंक्शन. सो मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, हम उन दोनों के बीच का प्रोजेक्टेड पॉइंट के मीन को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, तो हमने उसको मैक्सिमाइज कर दिया. पर दिक्कत क्या आ रही थी कि दोनों का वेरिएंस अलग अलग है, तो हमने वेरिएंस से उसको डिवाइड कर दिया. तो हमने उसको वेरिएंस से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास नॉर्मल स्केलिंग आ गई, हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया. सिंपल सी बात है. तो ये एज ए नॉर्मलाइजर हमने इसको यूज कर दिया. इज इट फाइन? नाउ अब आप यहाँ देखिए कि मेरे पास यहाँ m1 आ रहा है, m0 आ रहा है, s0 आ रहा है, s1 आ रहा है, पर हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था, दिस इज कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ w, पर यहाँ पर मेरे पास w नहीं आ रहा. बट हम जब इनकी डेफिनेशन देखेंगे, दिस m1, m0, s0 एंड s1, सो दीज आर अगेन फंक्शंस ऑफ योर m1 सॉरी w's. सो हम उसको W के फंक्शंस में ला सकते हैं, क्योंकि मैं जब इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, तो जब मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा W से, और W से डिफरेंशिएट करने के बाद इसको 0 से इक्वेट करूंगा. तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास W नहीं आ रहा है, तो पहले इस पूरी टर्म को W में लाने की कोशिश करें. इज इट फाइन? हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं. अब अगर आप कोशिश करें दिस m1, m0 एंड s1, s0 को प्लॉट करने की, जैसे मैंने आपको सिंपाई में बताया था, तो आप इसको कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर m1 माइनस m0 को हम प्लॉट करते हैं, सिर्फ इतने को m1 माइनस m0 के होल स्क्वायर को अगर प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा आता है. मतलब हमारे पास कैसा बोलूँगा मैं इसको, इट्स ए मेरे पास, मैं इसको वाइट बोर्ड पर लाने की कोशिश करता हूँ. मेरा वाइट बोर्ड आ गया है. मेरा वाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? या मेरा वाइट बोर्ड आ गया, या दिस इज फाइन. सो मेरा m1 माइनस m0 जो हो रहा था, मेरा m1 माइनस m0 जो है वो ऐसा आ रहा है. पर जब मैं इसको जब डिवाइड कर रहा हूँ s0 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर से, तो मेरी चीज क्या हो गई, मेरा अब वैल्यू यहाँ आ गई. हम जब यहाँ पर बेस्ट वैल्यू पे पढ़ते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स फंक्शन एंड दिस इज नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन. हम इस कॉन्वेक्स फंक्शन पे जाते हैं, तो हम वैल्यू निकालते हैं मिनिमाइजर की. हमने जब लीस्ट स्क्वायर पे देखा था, हमने बोला था दिस इज लीस्ट स्क्वायर, हमने उसको मिनिमाइज करा था, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करा था. मतलब उसका जो ग्रेडियंट था, उसका जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस यहाँ पर 0 आ रहा था. हम यहाँ पर ये वाला कर्व कहाँ पर 0 होगा, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन इसके मैक्सिमम पे 0 होगा. तो हम कहाँ जाएंगे, इसके इस टाइप के मैक्सिमाइजर पर. इज इट फाइन? इतना समझ में आ रहा है? नाउ अगेन आई एम मूविंग टू माय स्लाइड. सो
So what we are trying to do, we like to maximize this because इसका जो फंक्शन है उसका फंक्शंस जो है हमारे पास बेल कर्व शेप पे जा रहा था, we like to go for maximizer। जैसे हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में करा था, उसमें भी हमारे पास बेल कर्व शेप आ रहा था, तो जिसको हम मैक्सिमाइज कर रहे थे। सो वी लाइक टू मैक्सिमाइज दिस विथ रिस्पेक्ट टू W। तो हम पहले न्यूमरेटर पे काम कर लेते हैं। न्यूमरेटर इज लाइक m1 माइनस m0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको रिप्लेस करें m1 और m0 को, तो दिस इज W ट्रांसपोज m1 माइनस W ट्रांसपोज m0 का होल स्क्वायर। इसको फिर हम ओपन कर लें तो W ट्रांसपोज कॉमन आ गया यहाँ पर, W क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर को हम सॉल्व कर रहे हैं तो W ट्रांसपोज एक बाहर आ गया, इधर से W ट्रांसपोज को W को हम पीछे ले आए, तो व्हाट वी आर गेटिंग दिस इज m1 माइनस m0 into m1 minus m0। so this is not an projection, this is just a mean of your class 1 and this is mean of your class 2, class 1 and class 0। so what we can write like this is W transpose any term like SB into W। so this is we can write like W transpose SB into W, where SB is again your m1 minus m0 and this is m1 minus m0। हमने उसको सिंपल कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बोला, दिस SB को हम बोल सकते हैं दिस इज बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स, दिस इज बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स। दिस इज योर D क्रॉस 1 this is your D cross 1 vector, again this is 1 cross D vector, तो D cross 1 into 1 cross D, so you are getting your D cross D matrix। is it fine? M1 क्या था हमारे पास, M1 क्या था हमारे पास, मीन था हर एक क्लास का, तो हर क्लास का मीन हमारे पास एक D क्रॉस 1 वेक्टर आ रहा है, हमारे पास मीन आ रहा है, दिस इज अगेन M0, तो हमारे पास मीन्स आ रहे हैं डिफरेंट एक्सेस की, हमारे पास x1 x2 x3 जो भी हो रहा था तो उनका हमारे पास मीन आ रहा है, तो ये हमारे पास D क्रॉस 1 और दिस इज 1 क्रॉस D वेक्टर आ गया। वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी आर गेटिंग लाइक स्केटर मैट्रिक्स। अगर इसको m ट्रांसपोज हम पहले ले आते और ये पीछे ले आता तो मेरे को यहाँ पे स्केलर मिलता, हमने इसको आगे करा है, सो दिस इज वी आर गेटिंग स्केटर मैट्रिक्स। इज इट फाइन? सो वी आर कैलकुलेटिंग बिटवीन क्लास स्केटर मैट्रिक्स। फाइन, सो दिस इज द मोटो ऑफ कैलकुलेटिंग बिटवीन क्लास स्केटर मैट्रिक्स। मेथड बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ इसका आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जब हम इसको सम अप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी सी method है। Then we are again going from this S0 square and this is S1 square, so we are calculating S0 square। तो S0 square को हम again वापस हमारे उस चीज पे ले आते हैं, तो this is like W ट्रांसपोज xi माइनस W ट्रांसपोज m0, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा था, this is small m0, तो W ट्रांसपोज xi माइनस W ट्रांसपोज कैपिटल m0, हम उसको फिर W ट्रांसपोज बाहर ले लेते हैं, तो दिस इज xi माइनस m0 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को वापस खोल लेते हैं तो W ट्रांसपोज बाहर आ गया, W इधर बाहर आ गया, दिस इज xi माइनस m0 एंड दिस इज xi माइनस m0। और क्योंकि W ट्रांसपोज कांस्टेंट थे, यहाँ पर I पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर xi को अंदर ले आते हैं, तो दिस इज वी आर गेटिंग S0 इक्वल्स टू W ट्रांसपोज समेशन ऑफ xi's that belongs to class 1, so this is xi minus m0 then xi minus m0, so this is just an variance, so हम उसमें एंड दिस इज माय वेटेड वेरिएंस। सो अगेन सिमिलरली फॉर योर S1 स्क्वायर, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों का सम कर लेते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हम इसमें W ट्रांसपोज और W ट्रांसपोज को बाहर निकाल लें तो हमारे बीच में क्या टर्म मिलती है, कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या टर्म बच रही है, हमारे पास बीच में ये टर्म मिल रही है, तो लेट्स से दिस टर्म इज इक्वल्स टू SW। तो SW क्या हुआ, समेशन ऑफ xi माइनस m0 प्लस xi माइनस m0 प्लस xi minus m1 into xi minus m1 transpose। so this is supposed to be your within class scatter matrix। पिछला मैट्रिक्स जो आ रहा था हमारा between class scatter matrix था, and this is my within class scatter matrix। तो अब हम क्या लिख सकते हैं हमारे JW को, this is ये हमारा डिनोमिनेटर था W ट्रांसपोज SW into W, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन, हमको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको सिर्फ इस पे कंप्यूटेशन करना है। तो अब यहाँ पर हम चेक करें, हमारे पास W आ रहा है, W ट्रांसपोज आ रहा है, हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स में सारा डेटा आ रहा है, हमने उसमें कोवेरियंस निकाल लिया था, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब हमारी जो डेटा है वो स्केलिंग से अफेक्ट नहीं कर रहा, उसके पूरे वेरिएंस को इंक्लूड कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस इज माय JW इज सफिशिएंट फॉर कैलकुलेशन।
नाउ अब इसको हमने JW निकाल लिया था, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो पहले हमारे पास दिस इज A/B है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर इज लाइक योर W ट्रांसपोज SB इंटू W, तो दिस इज माई W स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन राइट इज W स्क्वायर, तो W स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, W से ही कर रहे हैं, तो दिस इज 2W इंटू SB, तो वी आर गेटिंग 2SB इंटू W। देन डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट कर लें, तो वी आर गेटिंग माइनस, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, W ट्रांसपोज SB इंटू W अपॉन, ये हमारा की पावर 1 थी तो इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, दिस इज W ट्रांसपोज SW इंटू W स्क्वायर इंटू क्या होगा, इसका इस W के हिसाब से इसको फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2SW, W इज इक्वल्स टू 0। इज इट फाइन? इतना समझ में आ रहा है? Any problem? Hello? Any responses from anyone? नो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन, ठीक है। सो अब हम यहाँ देखें, अब देखो यहाँ पर एक चीज, हम इन चीजों को अब समझने की कोशिश करें। दिस इज SW, SB क्या था हमारा, दिस इज D क्रॉस D मैट्रिक्स, फाइन। SB क्या था हमारा, D क्रॉस D मैट्रिक्स। हम यहाँ पर देख लें, हमारा SB था, दिस इज SB, दिस इज D क्रॉस 1 इंटू 1 क्रॉस D, सो दिस इज माई D क्रॉस D मैट्रिक्स। Similarly, this is again D cross D matrix. So this is again my D cross D matrix. तो SW is again my D cross D matrix. हम स्टार्ट करा था कि हमारा W जो था वो D डायमेंशन था। तो this is D cross D matrix into W. W क्या था, ये क्या था मेरा D क्रॉस D मैट्रिक्स इंटू D क्रॉस 1। तो D क्रॉस D इंटू D क्रॉस 1, तो मेरे पास क्या मिलेगा, D क्रॉस D मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय D क्रॉस 1 मैट्रिक्स, हमको क्या मिलेगा, D cross 1. D क्रॉस cross 1. So this matrix is multiplied by your vector. This is D cross 1. It means it is a vector. So this matrix multiplied by vector. So you are getting this is vector. So this is my vector. So this is D cross 1. इसका हमको output भी निकालेंगे. So this is D cross 1. D cross 1 is your vector. Fine. अब यहाँ देख लेते हैं, this is D cross 1. So this is SW. This is D cross D into D cross 1. So we are getting D cross 1. So D cross 1 into this is W transpose. So it means that we are getting 1 cross D into D cross 1. It means that we are getting 1 cross 1. It means that it is an scalar. Is it fine? Yes, sir. Okay. Similarly, for this case, so this is D cross D into D cross 1. So we are getting D cross 1, and again this is 1 cross D into D cross 1. So we are getting 1 cross 1. It means that we are again getting स्केलर। सिमिलरली फॉर दिस केस हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, सो दिस इज माय स्केलर, तो ये भी मेरा स्केलर था, स्केलर की पावर भी स्केलर ही होती है। सो दिस इज माय स्केलर वैल्यूज। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग लाइक दिस इज इन माय वेक्टर जो हमने कैलकुलेट कर लिया था। सिमिलरली दिस इज अगेन द केस ऑफ वेक्टर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट दिस इज वेक्टर इनटू 2 बाय सम स्केलर। सो दिस इज 2 अपॉन सम स्केलर, तो मान लो 0.5 भी होगा, तो वी आर calculating like some constant into vector. Similarly this is an scalar upon scalar into some scalar. So this is again an constant value, कुछ भी हो सकती है, 5 4 9 2 कुछ भी हो सकती है। तो we are saying that some constant, so लिखिए this is my some constant into SBW minus some constant, तो ये सारा constant हो गया into 2 into SW into W, फाइन, इज इक्वल्स टू 0। इज इट फाइन? इतना समझ में आ रहा है आपको? सम कांस्टेंट इनटू SBW माइनस सम कांस्टेंट इनटू SBW, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है। समझ में आया? हमारा ये वेक्टर और हमारा ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में। चलो मैं इसको फिर उससे समझाता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, मैं वापस व्हाइट बोर्ड पर आता हूँ, सो दिस इज लेट मी चेक। तो मैं एक डायमेंशन स्पेस ले आता हूँ,
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर लाइक दिस इज माय वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर लाइक दिस इज एस बी डब्ल्यू इंटू सम कॉन्स्टेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। फाइन, मेरे पास एक स्पेस और थी, वो एक उस स्पेस पे हम देख लेते हैं, दिस इज एस डब्ल्यू, है ना। और हम यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं अगेन, लेट्स से दिस इज एस बी डब्ल्यू, this is एस बी इंटू सम कांस्टेंट। सो सम कांस्टेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब ये दो डायरेक्शन में हो सकता था ये 5 हो, ये मेरे पास 2 हो, है ना। ये डायरेक्शन हो सकती थी मेरी, दिस इज लाइक 4 एंड दिस इज 2.5, कुछ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकता था, पर दोनों की डायरेक्शन एक हो रही है। और हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन इनटू इसका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन is SBW into some constant. So this is some constant, and this is SW into some constant. Let's say constant constant 2 and this is constant 1. तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, this is minus, तो it equals to 0. Is it fine? ये चीजें समझ में आई आपको? दो वेक्टर का अगर हम माइनस कर रहे हैं, अगर दोनों वेक्टर का अगर माइनस सेम डायरेक्शन में नहीं होते, लेट से एक डायरेक्शन ये होती और एक डायरेक्शन ये होती, इसमें से माइनस करते तो हमको क्या मिलता, हमको ये डायरेक्शन मिलती। मतलब अगर ये डायरेक्शन हमारे इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में। इज इट फाइन? Yes, sir. Okay, then again I am hide sharing option, so I am sharing my screen again. So मेरी screen दिख रही है आप लोगों को? So we are saying like some constant minus SBW minus some constant minus SW, W is equals to 0. तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। So we are saying that SW W is in same direction of SWW. So what we are trying to do is that we are trying, so this is my constant, so this is my some value vector into some constant value, again my some values and some constant। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये एस डब्ल्यू डब्ल्यू को मैं यहीं रहने देता हूँ या इस तरफ ले जाता हूँ, और इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं उठा के कहाँ ले आता हूँ, इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ ले आता हूँ। तो सम कांस्टेंट अपॉन सम कांस्टेंट, तो लेट्स से दिस इज माय लेम्डा। तो हमारे पास क्या मिल गई इस डायरेक्शन से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, एस डब्ल्यू इंटू लेम्डा, जो हमारा ये कांस्टेंट अपॉन ये कांस्टेंट था, इंटू एस बी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। दिस इज फाइन फॉर सम कांस्टेंट लेम्डा। हम कांस्टेंट वैल्यू को हटा रहे हैं हमारे कैलकुलेशन में, डायरेक्शन में हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हम हटा रहे हैं। इज इट फाइन? सो अब आप इसको देखें, अब आइगन वेक्टर के डिकम्पोजिशन के साथ इसको कंपेयर कर लें, दिस एस डब्ल्यू इंटू सम कांस्टेंट इंटू समथिंग लाइक, okay fine, so this is like au equals to lambda u, so au equals to lambda u, so this is my matrix, so again this is a is my matrix, so this is my matrix, this is my matrix, so this is my matrix SW, so this is my matrix, this W is my vector, so this AU is my vector, again this my W is again my U vector, so this is U vector into some lambda into something, so this is my eigen vectors over here, eigen values over here, so this is my eigen values, so this lambda is equals to something like, so जब हमारे पास ऐसा डिकम्पोजिशन आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, LU डिकम्पोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था। पर हम LU डिकम्पोजिशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि LU डिकम्पोजिशन में ज़्यादा टाइम लगता है। उसकी बजाय हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये जो था SW था, SW को अगर हम सिंपल से इस जगह पर कैलकुलेट करें तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि क्या हमारा SW इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो मैं मेरा W यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, SW को हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो कि SW हमारा इन्वर्टिबल क्यों है। पहली चीज, हमारा SW क्या था, हमारा SW जो था वो ये सारी चीजें क्या आ रही थी, कोवेरियंस मैट्रिक्स आ रही थी। कोवेरियंस मैट्रिक्स हमको पता है कि कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, पहली चीज। दूसरा रीजन क्या था कि आप देखो ये xi माइनस m0 इंटू xi माइनस m0, दिस इज माई रैंक 1 मैट्रिक्स। रैंक 1 मैट्रिक्स क्यों हो रहा है,
देखो अब यहाँ पे देखो xi माइनस एम जीरो, तो xi माइनस एम जीरो दिस इज माई सिंपल अ वेक्टर, उस वेक्टर में से मैंने सम कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से हटाई थी। अगेन दिस इज वेक्टर माइनस सम वैल्यू, तो लेट से this is my d cross 1 vector and again this is 1 cross d vector, तो d cross 1 into 1 cross d, again this is d cross d vector। पर एक चीज देखो कि यहाँ पर ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज बिल्कुल सिमिलर है। जब वैल्यूज सिमिलर है इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स पहले तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है और मैं हर वैल्यूज में से सेम ही वैल्यू हटा रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, जब हम इसको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक निकालने की कोशिश करेंगे तो ये मैट्रिक्स मेरा क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स की रैंक जो आएगी 1 आएगी, इसका डायमेंशन 1 आएगा। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का भी डायमेंशन मेरे पास 1 आएगा। अब मेरे पास ये कितने n नंबर, ये मेरे पास अगर ये कितने हैं n नॉट नंबर्स हैं, ये n1 नंबर्स हैं, तो हमारा SW क्या हो रहा है, मेरे पास रैंक 1 मैट्रिक्स जो है, रैंक 1 मैट्रिक्स के बहुत सारे सम्स हैं, एक रैंक 1 मैट्रिक्स प्लस दूसरा रैंक 1 मैट्रिक्स प्लस तीसरा रैंक 1 मैट्रिक्स, मान लो ये n नॉट 4 है, ये n1 5 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंक 1 मैट्रिक्स 4 बार ऐड हो रहा है या रैंक 1 मैट्रिक्स मेरा 5 बार ऐड हो रहा है, तो मेरा टोटल 9 बार रैंक 1 मैट्रिक्स हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रैंक 1 मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होता है, रैंक 1 मैट्रिक्स है तो रैंक 1 मैट्रिक्स मेरा इन्वर्टिबल हो जाता है। सो दिस इज अगेन इन सम ऑफ रैंक 1 मैट्रिक्स, और वी कैन से दैट दिस इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ सम कोवेरियंस मैट्रिक्स, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स भी हमेशा इन्वर्टिबल होता है, तो वी कैन से दैट दिस इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हमारे पास जब चीजें सिंपल हुई तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई डब्ल्यू, सो माई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब मैं एस डब्ल्यू को इन्वर्टिबल कर रहा हूँ तो एस डब्ल्यू को मैं एस डब्ल्यू इनवर्स इंटू एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू इस इक्वेशन में लेके चले जाएं, तो मैं एस डब्ल्यू को उस तरफ ले जाता हूँ, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस बी इंटू डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू इनवर्स। अब इसमें से मैं लेमड़ा हटा देता हूँ, क्यों लेमड़ा हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो लेमड़ा है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मैं सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट वैल्यू सारी हटा देता हूँ। तो दिस इज माई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस इनवर्स एस बी इंटू डब्ल्यू, सो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दोज आइटम्स नाउ। अब हम जानते हैं कि एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्या था, एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्या था, एम वन माइनस एम नॉट इंटू एम वन माइनस एम नॉट का ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू, दिस इज एस बी, तो एम वन माइनस एम नॉट इंटू एम वन माइनस एम नॉट ट्रांसपोज इंटू डब्ल्यू। तो अब इसमें हम क्या कर देते हैं, डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डब्ल्यू का जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, लाइक दिस इज एम वन माइनस एम नॉट इंटू डब्ल्यू, तो ये मेरा क्या बन रहा है, दिस इज माई प्रोजेक्शन with respect to my mean, so this is m1 minus m naught capital into स्मॉल m1 माइनस m naught। तो अब ये वाली वैल्यूज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज m1 माइनस m naught, मेरे पास क्या हो रहा है, दिस इज माई कांस्टेंट वैल्यू। सो मैं यहाँ SBW में क्या कर रहा हूँ, SBW में ये कांस्टेंट वैल्यू, अगेन दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी मैं इस वैल्यू को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ वैल्यूज पेस्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर गेटिंग देख m1 minus m naught, so this is my constant value, so this is m1 capital M1 minus m naught, so this is my constant value into some constant, so this is, let's say this is my k constant value, so here SBW, so my W is equals to S inverse, जो S inverse हमारे पास था, this is m1 minus m naught, so हमने क्या करा, यहाँ से k वापस रिमूव कर दिया, तो मेरा efficient W क्या हो गया, this is W is equals to S1 minus S1 inverse m1 माइनस एम नॉट। सो हम इसको एक लाइन में सब करने की कोशिश करेंगे, हमको W की डायरेक्शन चाहिए, हमने उसका प्रूफ पढ़ लिया, अब इसका सिंपल सा यूसेज पढ़ लेते हैं। सिंपल सा यूसेज क्या है, मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एम नॉट और m1 निकालेंगे और SW निकालेंगे, SW आपको निकालना आता है, तो W अब उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो W का मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं, तो W इज इक्वल्स टू SW इनवर्स माइनस m1 माइनस m नॉट, तो मेरे पास क्या हो गया, W निकल गया, तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, हमको m नॉट m1 और SW निकालना है, तो मेरे पास W की डायरेक्शन आ गई, W की डायरेक्शन आ गई, मेरी नई एक्सिस हो गई, अब इस नई एक्सिस पर आप काम कर लो। सो दिस हाउ वी कैन गो फॉर डायमेंशन रिडक्शन। सो डायमेंशन रिडक्शन, अब हमारी जो लाइन की इक्वेशन बन रही थी W ट्रांसपोज x प्लस बी, तो हमको इस B से अभी कोई मतलब नहीं है, W नॉट से हमको कोई मतलब नहीं है, हम जब क्लासीफायर पर काम कर रहे होते तब हमको इस B पे काम करना था, हमको डायमेंशन रिडक्शन पे काम नहीं करना, हमको डायमेंशन रिडक्शन पे काम करना था, हमको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे काम करना है, ये हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट और
LDA. So this is for today's class. If you are having any question, then you can ask me. As I'm stop sharing my class.